নমস্কার বন্ধুরা, আমি সঞ্জয় চৌধুরী বুবাই আর আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি দেশ নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলবো, কিছু খবর তোমাদেরকে দেব। গতকাল প্রধানমন্ত্রী যখন সংসদে বলেছেন যে কোনো জননেতা বা কোনো বড় নেতা ভারতকে প্রভাবিত করেনি অপারেশন সিঁদুরকে থামানোর জন্য, সিজফায়ার করার জন্য, এটা একমাত্র ভারতীয়রাই ডিসিশন নিয়েছে। এবং পাকিস্তান যখন ভারতের কাছে এসে রিকোয়েস্ট করেছিল যে এবার সিজফায়ার করে দিন, তখনই সেই কথা শোনা হয়েছে। এই এই বক্তব্যের পর থেকেই কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প আর কি তিলবিলিয়ে উঠেছে আর কি। তিনি সন্ধে হতে না হতেই বলে দিলেন ভারতে 25% ট্যারিফ ধার্য হবে এবং তার উপরে রাশিয়ার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আরও 5%, বা ওটা এখনও ফিক্স হয়নি, কিন্তু আরও পেনাল্টি লাগতে পারে। তো আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই মুহূর্তে ভারতের 25+% ট্যারিফের ভারত পড়ে গেছে সেই আওতার মধ্যে। এবং তিনি আরও ওর মধ্যে অ্যাড করেছেন যে ভারত রাশিয়ার মতন ডেড ইকোনমি, ভারত এবং রাশিয়া যদি একসাথে ডুবতে চায় তো ডুবুক, আমার কি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্য, ভারত ডেড ইকোনমি। আর এই ডেড ইকোনমি নিয়েই কথা বলবো। আর এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই বক্তব্য, ডেড ইকোনমির উপরে বক্তব্য আসার পরেই ভারতীয় অপোজিশনের লিডার রাহুল গান্ধী, জানি না উনি কোন পৃথিবীতে বাস করেন, মানে অন্য কোনো পৃথিবী আছে কি না, সেখান থেকে তিনি খবর পান কি না জানি না, তিনি তার এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডেড ইকোনমির ওপর যে বক্তব্য সেটাকে তিনি মান্যতা দেন এবং তিনি বলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ঠিক বলেছেন এবং ভারতকে এক্সপোজ করেছেন। সব ভারতীয়রাই জানে এটা ডেড ইকোনমি। আপনি কোন ভারতীয়দের মধ্যে যদি আপনি থাকেন তাহলে আপনি জানবেন নিশ্চয়ই যে রাহুল গান্ধীর সাথে যদি সহমত হন যে ভারত ডেড ইকোনমি। আর তিনি বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতকে এক্সপোজ করেছে, শুধুমাত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই কথা জানে না যে ভারত ডেড ইকোনমি। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. বিজেপির কোনো নেতা জানে না এটা ডেড ইকোনমি, যেটা গোটা সবাই ভারতীয়রা জানে এবং রাহুল গান্ধী নিজে তো জানেনি। যাই হোক, তো রাহুল গান্ধীর এই ডেড ইকোনমির ওপর আজকে অঙ্কিত স্যার সুন্দর একটা ব্যাখ্যা করেছে যে ভারত ডেড ইকোনমি কিনা, ভারত মৃত ইকোনমি কিনা, সেটার ওপরে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং তিনি বুঝিয়েছেন যে তিনি পোস্টমর্টম করেছেন খবরটার, যে ভারত কীভাবে ডেড ইকোনমি সেটা বোঝার চেষ্টা করেছেন। চলুন আমরা দেখে নিই ভারত কতটা মৃত ইকোনমি, কোন কবরে ভারতের ইকোনমি ঢুকে আছে এবং আগামী দিনে ভারতের ইকোনমির সাথে কি হতে চলেছে, আমরা এই জিনিসগুলো দেখব। আশা করি, আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা সবাই হিন্দি বোঝেন। অঙ্কিত স্যারের যে ভিডিওটা আমি শেয়ার করবো আপনাদের সাথে, সেটা হিন্দিতে, কাইন্ডলি আপনারা দেখেন এবং স্পষ্ট ভাষায় কথা বলেছেন হিন্দিতে, আপনি বুঝতে পারবেন নিশ্চয়ই। যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আপনি কমেন্ট করবেন, আমি ওটার বাংলা ট্রান্সলেট করে আপনাদের সাথে আবার আমি শেয়ার করে দেবো। চলুন আমরা দেখে নিই ভারতের ইকোনমি কতটা মৃত, কতটা ডেড। কবরের মধ্যে যদি ঢুকে থাকে ভারতের ইকোনমি, সেই কবর থেকে আদৌ বেরিয়ে আসতে পারবে না কবর থেকে অলরেডি হাত বের করে ফেলেছে। তো চলুন শেয়ার করি আপনাদের সাথে অঙ্কিত স্যারের সেই ভিডিওটা। लेकिन हाँ, अगर इसने डेड इकोनॉमी कहा कि भारत डेड इकोनॉमी है टैरिफ के बाद में, इंडिया रशिया की तरह ही डेड इकोनॉमी है, तो अब हम डेड इकोनॉमी थोड़ा समझ लेते हैं अर्थव्यवस्था की भाषा में। अर्थव्यवस्था कहती है कि वो इकोनॉमी जो पूरी तरह ठप हो गई हो। क्योंकि अगर हमको डेड इकोनॉमी बोल रहा है तो ये युगांडा हुआ और ये सब अफगानिस्तान हुए, इनको कहां ही रखोगे? मतलब ये इन इकोनॉमीज को कहां ही मानोगे जिनके अंदर ये कोलैप्स की स्थिति, जैसे श्रीलंका पलट ही मार गया था, पाकिस्तान डेट में ही डूब गया था, इनको कहां रखोगे? पर कुछ नहीं साहब, इसने हमें डेड इकोनॉमी कह दिया है। ये तो वो वाली बात हुई कि आप कितने ही अच्छे हो लेकिन कोई आए और आपको गाली देके चला जाए। अब आप प्रूव करते फिर रहे हो कि ये गाली सही नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे देश में अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी जी आए, उन्होंने कहा यस इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, और थैंक्स मिस्टर ट्रंप जो आपने ये कह दिया कि यस यू आर राइट, एवरीबडी नो एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। हर आदमी जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। आप भी जानते हो तो कमेंट में बताइएगा भाई, क्योंकि मतलब राहुल गांधी जी का ऐसा मानना है, हर आदमी जानता है। और
साथ में इन्होंने यह कहा कि इंडिया इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फैक्ट बता दिया है और एंटायर वर्ल्ड को पता चल गया है कि इंडिया डेड इकोनॉमी है। तो भाई मर गया हो और लाश छुपा के रखी हो भारत सरकार ने, तो अब अगली मांग यही होनी चाहिए कि वो जो मृत पड़ी अर्थव्यवस्था है उसे सबको दिखाया जाए, क्योंकि अब तो भाई विपक्ष भी ये कह रहा है कि भारत डेड इकोनॉमी है। तो भाई साहब मांग होनी चाहिए कि हमारी डेड इकोनॉमी की जो पड़ी हुई लाश है, जो कब्र में बड़ी है, उसे निकाल कर लाया जाए। कहीं छुपा रखा है साहब आपने, हमारी मांग है अब ये। अब ऐसे में वर्ल्ड इकोनॉमी के अगर हिसाब से हम बात करें तो अब देखते हैं डेड कहां है। अब खोदते हैं, कब्र खोदते हैं अपन की डेड इकोनॉमी कहां है इंडिया की, आइए खोजते हैं। अगर हम वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी बाई कंट्रीज के हिसाब से चलते हैं तो इमर्जिंग और डेवलपिंग एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं उनमें चाइना के बाद दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। अगर ये डेड होने का प्रमाण है तो भाई साहब इसका मतलब कब्र आपकी अच्छी रही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग के अंदर लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन वर्ल्ड बाई जीडीपी एंड शेयर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर, तो साहब आपके सामने है 30 टॉप इकोनॉमीज की बातें जो जीडीपी नॉमिनल के आधार पर हैं। उसमें इंडिया 5वें नंबर पर खड़ा है। अच्छा साहब, इसके अलावा अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी यानी खरीदने की क्षमता के आधार पर बात करें तो इंडिया आफ्टर यूरोप, चाइना, यूएस, इंडिया नंबर 3 पर खड़ा है। अच्छा साहब, और भी तथ्य देख लेते हैं। अगर लार्जेस्ट इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी के ऊपर अगर हम बात करें, जीडीपी ही है पैमाना नापने का कि अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, तो यह सच है कि 1980 तक हम मरे ही थे, क्योंकि हम टॉप 20 में कहीं नहीं थे। पर हो सकता है इसे मरना नहीं कहा जाता हो, स्वर्ग में रहना कहा जाता हो, कब्र में नहीं। 1985 में हम टॉप 20 में कहीं नहीं थे, 90 में हम कहीं नहीं थे, 95 में हम कहीं नहीं थे, 20 में भी हम टॉप 20 में कहीं नहीं थे, 2005 में भी हम कहीं नहीं थे, 2010 में हम लोग 10वें पायदान पर थे इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम 20 में बात करें। हां, यहां पर हम लोग आना शुरू हो गए थे 15 में, मतलब ये 2000 के अंदर 15वें नंबर पर थे और 17 के ये 95 के अंदर हम 17वें नंबर पर थे। इस तरह से हम लोग उठते हुए जा रहे थे। टॉप 10 में आकर टिके हम 2010 में। 2015 में आकर के हम 10वें नंबर पर ही थे। 2020 में हम आकर के टिके इकोनॉमी में 7वें नंबर पर। 2025 में आकर टिके हम 5वें नंबर पर और 2030 में होंगे हम 3रे नंबर पर। यदि इसे भी डेड होना कहते हैं तो कहेंगे कि मुर्दे उठ खड़े हुए हैं, और ऐसे में यह मुर्दों का उठ खड़ा होना ट्रंप को दिख रहा है। अब ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था इतने बड़े पायदानों से उठकर इस तरह से परचेजिंग पावर पैरिटी में या नॉमिनल जीडीपी में उठती जा रही है, तो यह निश्चित ही मरी लाश को ढूंढने जैसा है, डेड अर्थव्यवस्था को खोजने जैसा है। तो हम खोज रहे हैं, आप भी अपनी आंखों से खोजते रहिएगा। ऐसे में जीडीपी फोरकास्ट की अगर हम बात करें तो भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, ना तो आईएमएफ भारत का है ना वर्ल्ड बैंक भारत का है। पता नहीं इनको ऐसा क्यों दिखता है। इससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये दोनों की दोनों जो बैंक हैं ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से अमेरिका में ही हैं। पता नहीं इनको फिर भी ऐसा क्यों दिख रहा है। हो सकता है ट्रंप से नहीं पूछा होगा कि सर वो आईसीयू में थी, निकाल दी क्या लाश, कुछ इस तरह से हो सकता है। अब और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ तो ट्रंप डेड इकोनॉमी करार दिए और उधर आईएमएफ ने अनाउंसमेंट कर दिया कि भारत की जीडीपी 6.4% के हिसाब से 2025-26 में ग्रो करेगी। मतलब दुनिया के जितने भी देश हैं, चाहे चाइना हो, फिर अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, इन सब देशों से ऊपर तेज गति से ग्रो करती हुई इकोनॉमी अगर दिखेगी तो वो भारत की होगी। मतलब प्रोजेक्शन तो यह है कि इंडिया की इकोनॉमी 6.5% की दर से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी। आंकड़े भी हैं, 29 जुलाई का आंकड़ा है कि इंडिया ने चाइना से ज्यादा फोन एक्सपोर्ट कर दिए इस साल। तो भाई साहब अमेरिका को हमने ज्यादा फोन बेच दिए, शायद डेड इकोनॉमी का प्रमाण होता हो। हां, यह जरूर कह सकते हैं कि ट्रंप इन दिनों अनपॉपुलर लीडर हैं अपने देश में, और ऐसे में अगर अमेरिकन को यह बात लग रही हो बुरी तो हो सकता है भारत से लड़ना इसके लिए फायदे का हो, क्योंकि अल्टीमेटली यह व्यक्ति जो पीठ पे ही छुरा घोंपता है वो तो अब दिखाई दे भी रहा है। लेकिन हां, दुनिया के कुछ देश इस बात को समझ रहे हैं। ईरान ने भारत में रहते हुए कहा है कि देखिए ये तरीका सही नहीं है। रशिया भी इसी बात को बोल रहा है, सैंक्शंस का, ट्रेड का ये उपयोग जो है ना, ये अंततोगत्वा चीजों को बिगाड़ेगा। भारत की तरफ से भी बयान आया, पीयूष गोयल साहब बोले, बोलना बहुत पहले चाहिए था लेकिन नेगोशिएशंस में थे। अब इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि इंडिया ऑलमोस्ट दुनिया की
की ग्रोथ में 16% कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर दुनिया 100% की दर से बढ़ रही है तो 16% तो अकेले भारत की वजह से आगे बढ़ रही है। ऐसे में उसको डैड लगता है। चलिए, तो अमेरिका को डैड मुबारक, और फिर तो कहीं कोई पड़ा पड़ा ये ना कह दे हमें तो मरा ही दीजिए गुरुजी, अगर ये मरना है तो मरना कबूल है। कुछ ऐसे भी हो सकता है। खैर, ऐसे में भारत तैयारी कर रहा है इससे निपटने की, इसके आने वाले रिपरकर्शंस की। भारत ने इस बीच में यूके के साथ, यूएई के साथ, आफ्टा कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, और इसके साथ भी हो जाएगा। ये केवल और केवल इसके नेगोशिएटिंग टूल्स हैं। ये फिर से प्रेशर डालेगा, फिर से बात करने के लिए निकालेगा, फिर आगे जाकर के समझौता करेगा। अभी महीना डेढ़ महीने तक इसका नाटक नौटंकी सब चलेगा। अभी तो इस बीच में थोड़ा और हाश होगा ये अभी, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं जाकर के बिहार में प्रवचन भाषण ना दे रहे हैं कि हमने नहीं सुना था, तो फिर वो भाषण भी उस तक पहुंच जाएगा। यहां है ना कुछ उसके प्रेमी जो कहेंगे सर 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 ये बोल दिया देखिए, तो फिर वो थोड़ा और खेलेगा। बिहार चुनाव तक ये मजे लेगा, हो सकता है। उसके बाद डेढ़ दो महीने में जाकर ये आदमी शांत होगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही है, बाकी फुल मनोरंजन है। आप लोग बिल्कुल तरीके से काम करिए, और सरकार आपसे भी अनुग्रह है कि इस तरह के लोग अगर आपको ब्लैकमेल करने लग गए तो फिर राष्ट्र के अंदर आपके पीछे इतने सारे लोग क्यों उम्मीदें लगाकर खड़े हैं। और दूसरी बड़ी बात जो है ना, भारत को सही मायने में जरूरत है अब इस वजह से नहीं, कल को चाइना हमारे साथ इस तरह की हरकत कर सकता है, कोई भी करे हमसे। हमें आवश्यकता है देश को बुनियादी रूप से मजबूत बनाने की। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, जो यहां से जाकर विदेश जा रहा है, उनकी बात सुनने की। ये जो छात्र आपको आए दिन लाठियां खाते, आज तो छात्रों के चक्कर में टीचर लाठी खाते हुए दिखे। साहब, ये नहीं होना चाहिए देश के अंदर। अगर ये सब हुआ तो फिर हम लोग केवल बयानवीर हो जाएंगे, फिर जो वाकई में विश्वगुरु बनने की बात है ना, वो दूर रह जाएगी। है तो ऐसे में आवश्यकता है कि जो हमारे बुद्धिजीवी अमेरिका में बैठे हैं वो भी अपना मुखड़ा खोलें और भारत के हित में अपने बातें रखें। दूसरा, जो बाहर गए हुए विदेशी हैं उनको सरकार वापस बुलाने का प्रयास करे, कुछ ऐसा इकोसिस्टम उन्हें दे कि हाँ भाई आप लोग कुछ यहां पर बढ़िया करो, हम आपके साथ टैक्स का टेररिज्म नहीं रखेंगे, आप लोगों को जो टैक्स दोगे उसके अनुरूप कुछ सुविधाएं देंगे। सरकार को आवश्यकता है आमूलचूल रूप से शरीर को स्वस्थ करने की। कहते हैं ना कि अंदर से अब आपको सुधरने की आवश्यकता है। यह आपके लिए आपदा में अवसर का समय है। हे भारत सरकार, आप जाग जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली इस तरह से कोई आगे अगर आपके साथ बार्गेनिंग करने वाला आ गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी।